Hello everyone, welcome to our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. So, today we have a very special guest with us, Tanu, who is doing her higher studies in Russia. So, firstly, I welcome you to the today's podcast and thank you so much for taking out your time for this. So okay, it's my pleasure to join the podcast. Okay, so can you tell us more about yourself कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड आपने अपना एजुकेशन कैसे करा सब? I belong from Haryana, a small village, Bajana Kala, situated in Sonipat. I have completed my schooling from Global Public School. Uh, I used to do boxing at my school time in Jawalaji Sports Academy. After that, I got admission in Bhagatpur Singh Mehla University. There, I pursued my bachelor's in physical education and sports. With that, I started pursuing the diploma in Russian language. There I got to know about the scholarship education in Russia, in which you can study abroad without paying any fees, and everything will be state funded. You will get stipend to live there. So I just filled that form, and I got selected in State Pedagogical University for my preparatory course. And after that, for masters in physical education, I got admission in Moscow State Academy of Physical Culture. So this is the best opportunity which I received, and I claimed that, and now I'm in Russia. तो आप इस कोर्स के बारे में बताओगे मतलब आपने कैसे अप्लाई करा एंड ये स्कॉलरशिप कैसी थी कितना आपको अप्लाई प्रोसीजर क्या है स्कॉलरशिप का? हाँ जी। सबसे पहले हमें इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है 15 जनवरी तक। हमें तो मतलब 15 दिसंबर तक। सॉरी टू डिस्टर्ब बट लाइक आप जो कोर्स कर रहे थे वो है फिजिकल एजुकेशन का, तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल सकती है या फिर आउटसाइड ऑफ डेट कोर्स आल्सो दे कैन अप्लाई? हाँ जी, इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, 12th के लिए, बैचलर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेशलिस्ट डिग्री आप लेना चाहते हैं, एमबीबीएस वगैरह, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास रसीद आनी जरूरी है, आपके पास सब्जेक्ट होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास ये फिलफिल करने जरूरी है आपके लिए। ओके, तो आपने वो स्कॉलरशिप का नेम क्या बताया था और हमें कहाँ पे अप्लाई करना है? एजुकेशन एजुकेशन इन रशिया। एजुकेशन इन रशिया, तो मतलब सीधा गूगल पे जाके अगर हम ये लिखें तो उसमें जो वेबसाइट आएंगे उसमें करना है? How you'll get the portal. And now I came to know when I am in Russia that there are two types of scholarship of to enter in Russia for free. One is open door scholarship, and one is education in Russia. Education in Russia provides you 100% scholarship in education, plus you get stipend to live here. But in open door scholarship, you have to pay some expenses to them, and you are getting less stipend than education in Russia. तो जो एजुकेशन इन रशिया स्कॉलरशिप है, लाइक उसकी प्री क्वालिफिकेशन क्या है? लाइक कोई भी कंट्री अगर आपको कहे कि यहाँ पे आके रहो तो कुछ तो वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपके अंदर ये प्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अदरवाइज व्हाई दे आर इनवाइटिंग देम अदर पीपल टू देयर ओन कंट्री? As I have heard that the population is decreasing, and I think every country is providing same scholarship to every country. बट लाइक कुछ प्री क्वालिफिकेशन है, जैसे जो स्कॉलरशिप्स होती है वो चाहती है कि आपने ये कोर्स करा हो, This लाइक is आप थोड़ा हाँ कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। this is competitive based according to your preferences and achievements you have received in your life. According to that, on competitive base, you will be selected for that. ओके। Like, what are your qualifications? How much score do you have? And what are your achievements? All matters. ओके, तो आपने जब स्कॉलरशिप के लिए इस सब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा तो आपकी क्या मतलब जो भी था वो क्या प्री क्वालिफिकेशंस मांगी गई थी और क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे पूरे? तो मैंने लास्ट टाइम मैंने ये फॉर्म फिल किया था, तो मेरे पास एक तो पासपोर्ट होना कंपलसरी है, जिसमें मुझे जब तक वीजा चाहिए उससे 1 या 2 साल का मेरे पास टाइम होना चाहिए एक्सपायर होने में, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर ना हो उस टाइम के दौरान। दूसरी चीज थी, मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे फिटनेस के। तीसरा जो मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरी अचीवमेंट्स है, वो मांगी गई थी। अगर प्लस आपके पास कोई इंटरनेशनल ओलंपियाड और एनी
अदर इंटरनेशनल कोई अचीवमेंट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। मुझसे पूछा गया था कि क्या आपको रशियन आती है, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है और किस लेवल तक आती है, इंटरमीडिएट है, बिगिनर है, फ्लुएंट है, तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और कितना लेवल तक आती है। तीसरा फिर चौथा मुझसे पूछा गया था कि क्या आप रशियन लैंग्वेज के लिए प्रिपरेटरी कोर्स चाहते हैं, आने के बाद आप रशियन सीखना चाहेंगे, पहले या डायरेक्ट अपने एजुकेशनल डिग्री में जाना चाहेंगे। तो फिर मैंने प्रिपरेटरी कोर्स के लिए बोला था कि मुझे प्रिपरेटरी कोर्स चाहिए, आई वांट टू लर्न रशियन फर्स्ट एंड आई विल गो टू माय मेन कोर्स। तो मुझे 1 साल के लिए प्रिपरेटरी कोर्स के लिए इन्होंने मॉस्को स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी दी है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया। Also, ambassadors from the foreign countries came here to learn Russian language. ओके। तन्नु, लाइक इसमें थोड़ा आप इस चीज के बारे में बताओगे, जैसे कि अगर जो स्टूडेंट सुनेंगे तो उनको ये चीज क्लियर होनी पड़ेगी कि स्कॉलरशिप क्या है, स्पेसिफिकली किस लोगों के लिए। और लाइक स्कॉलरशिप इतनी आसान नहीं होती है, प्रोसीजर बहुत लंबा होता है उनको अप्लाई करने का, एंड ऐसा नहीं होता कि सब सेलेक्ट हो जाए। तो व्हाई दे विल सेलेक्ट दो स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दैट? तो ऐसा क्या पॉइंट है जो उनको जरूर याद रखना चाहिए कि वो सेलेक्ट हो पाए स्कॉलरशिप के लिए? आपके पास जो भी अचीवमेंट है आपके, आप ये मत सोचो कि इसकी तो क्या जरूरत है, इसको तो कौन देखेगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करो। अच्छा है वो आपके पास स्पोर्ट्स का है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का है, कोई डांस में आपने किसी स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, यूथ पार्लियामेंट में आपने किया है, या आपके पास कोई एनसीसी का, एनएसएस का कोई भी सर्टिफिकेट आपके, आप सारे अपलोड कीजिए और उनके हिसाब से आपको स्कोर मिलता है, क्रेडिट स्कोर मिलते हैं और उसके बेसिस पर आप इनरोल होते हैं। तो आपने किसी कंसल्टेंसी को भी मतलब करा था, कनेक्ट करा था, या फिर एवरीथिंग यू हैव डन बाय योर ओन? Everything I had done by myself. I had not consulted by anyone. ओके। तो ये जो जैसे आपने प्रोसीजर बताया, तो इस प्रोसीजर में यूनिवर्सिटी ने आपको, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाते हो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ आपको हेल्प रही, मे बी इन द वीजा प्रोसेस और इन द अदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट? जो मेरे रशियन टीचर थे तो मुझे रशियन थोड़ी कम आती थी, तो मैंने जो मेरी मेल्स वगैरह आती थी तो मेरे मैम देखते थे, मुझे हेल्प करते थे, गाइड करते थे कि बाकी ये कर सकते हो। बाकी ऐसा है कि जिस बच्चे के पास कोई भी नहीं है तो ट्रांसलेटर का हमारे पास जो मेल आ रही है वो डायरेक्ट ट्रांसलेट हो ही जाती है मेल पर ही। राइट। और ऐसा कोई टफ प्रोसीजर समझ पाए, कुछ डॉक्यूमेंट्स में हमें मिसगाइडेंस हो सकती है कि हम कुछ और समझ जाए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स कोई फुलफिल हमने नहीं किया क्राइटेरिया तो हमारे पास उसकी भी मेल रिसीव होती है कि यू हैव फॉरगॉटन दिस डॉक्यूमेंट, प्लीज सबमिट इट। ओके ओके। अब तो मुझे डिग्री नहीं दी थी, मेरी 6 सेमेस्टर की कंबाइंड डिग्री नहीं दी, तो मैंने पीडीएफ 6 सेमेस्टर तक अपलोड की हुई थी, तो उन्होंने मुझे बार बार मेल किया कि आपकी ये डिग्री आप इसको चेंज करो, कंबाइंड डिग्री लगाओ। तो फिर मुझे बहुत बाद में पता चला कि ऐसी कोई डिग्री बनती है बाद में, मैंने यूनिवर्सिटी से फिर बाद में बनवाई थी। ओके, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का प्रोसीजर उसी फॉर्म फिलअप करते हुए हो जाता है? हाँ, फॉर्म फिल आपका 15 जनवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आपको अप्रैल मई में आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाती है, आपका सिलेक्शन हुआ है और किस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो। ओके हम उसमें ओके 6 यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हमारी प्रायोरिटीज कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है और आप किस यूनिवर्सिटी के एलिजिबल होते हैं। फिर ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है। आपको फिर यूनिवर्सिटी डायरेक्ट होती है, आपका एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ये प्रोसीजर चलता रहता है। आपको लगभग सितंबर में इनटेक करवाना स्टार्ट कर देता है रशिया। फिर ओके आपका थोड़ा टाइम भी लग सकता है, नवंबर तक बच्चे आते हैं, नवंबर दिसंबर तक। ओके ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर, तो आप वहाँ पे कौन सी हायर स्टडीज, मतलब इस दिस इन फिजिकल एजुकेशन में? मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। तो उससे पहले आप प्रिपरेटरी कोर्स करिए फॉर द ईयर, देन आफ्टर ईयर, आप 1 ईयर आपका ये जो स्टार्ट होगा हायर स्टडीज का कोर्स। 2020, after 2026, I will be shifted to the university in my main course. ओके ओके And one of the best thing is we don't have to submit all documents for admission. They have everything. ओके Means when I came to Russia, I had also watched vlogs that what should I take when I'm going to Russia for study.
They were like say, 50 photos, 10, 15, 15, 20, 20 photocopies of you, each document. It will be necessary there. But now I'm thinking that they are of no use for me because I don't have to go for admission. I just went it there to take my passport for my medical, for my and for my visa process only. ओके। तो आपका पूरा टोटल कॉस्ट ओवरऑल कितना आया था, लाइक इंक्लूडिंग दिस डॉक्यूमेंटेशंस एंड जो भी वीजा पासपोर्ट का लगा था एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग का। एंड उन्होंने कुछ लाइक जब स्टार्टिंग में आप वहां पे जब फर्स्टली जा रहे थे इन रशिया, तो एकोमोडेशन का भी उन्होंने कुछ हेल्प करा था या फिर इट वाज ऑल बाय योर ओन? वीजा प्रोसेस के लिए तो आपको फीस एम्बेसी में दे सकते हो या फिर आप रशियन वीजा सेंटर है आप वहाँ जाकर हेल्प ले सकते हो। रशियन वीजा सेंटर में जाओगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होता है। अगर आप डायरेक्ट एम्बेसी में जाकर अपना अप्लाई करते हैं उस वीजा के लिए तो आपको थोड़ा कम पे करना पड़ता है। अब अगर आप डायरेक्ट दिल्ली जाकर एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो आपको आई थिंक 6 to 7 thousand पे करना होता है। रशियन वीजा सेंटर में जाकर आप पे करते हैं तो वहाँ पर मैंने 11,500 पे किया था, which varies timely. I think it may be changed after some time. I'm not sure. Then after visa, I booked my ticket. And that depends on you which ticket you are booking, at what time you are booking on instant or sometime before. It depends on the price of the ticket going at that time. And almost I can say 5,000 rupees are used for my documentation, which is much more. I think that was not used. I went to Delhi 2 3 times. That also included that. This is simple process. All those who are agent in India, they do the same procedure. But the difference is I did it myself, so it cost so less for me. When I went into the embassy and Kashmiri center, there were numbers of agents who like American tourists, fly overseas. They were all they came to take their passports and the procedures is same. तो यहाँ पे टोटल लाइक आपका आपका, मेडिकल जैसे आपने इंश्योरेंस बताया था, एक बार मुझे याद है कि आपका टोटल लाइक जो कॉस्ट आता है वो 1 लाख के एस्टिमेटेड आया था, राइट? एंड काफी लोगों का इससे ज्यादा जाता है। हाँ फिर हम्म। वो एजेंट भी एजेंट अपना बजट भी इंक्लूड करते हैं ना उसमें, वो इसलिए ज्यादा जाता है। 1 लाख मेरा पूरा नहीं आया है। मैंने जैसे मैं आपको बता 11,500 मैंने वीजा अप्लाई किया तब पे किया है। ऑलमोस्ट 5,000 मेरे डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। मेरी टिकट है। मैंने यहाँ पे 9,500 रूबल का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लिया जिससे मेरी हॉस्पिटलिटी फ्री है। 5,500 आई थिंक मैंने मेडिकल टेस्ट करवाए हैं, HIV यूजुअल का होता है। और डॉर्मेट्री के लिए मैंने पे किया है 1,400 रूबल पर मंथ। मुझे स्टाइपेंड मिलता है 3,000 रूबल पर मंथ। तो यही खर्चा है बस मेरा, ऑलमोस्ट लाख मैं बोल सकती हूँ। ओके। तो शॉपिंग वगैरह अगर आप, वो आपके हम्म। ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो। वैसे ज्यादा राइट। खर्च देखो मेरा मानना है नहीं है। तो वहाँ की स्टडीज, लाइक स्टडीज इन रशिया एंड स्टडीज इन इंडिया, आपको क्या डिफरेंस लगा? Studying in Russia, higher education is so practical, not cramming the things again and again. Like if we are doing one topic today, we will do only one topic today and we will clear it completely. Not like learn questions now. Everything is done practically. It means we are doing one thing and then verbally we will learn the thing whole day, like through uh, act, through conversation, dialogue conversation, and with friends we communicate with the topic. This with the same topic we will continue whole day, and then we will learn that thing completely. Then we will use next day test, which is not scoring, and you will get only rank like good, very good. Teacher will verbally speak to you and will not give marks like you got 10 marks, you got 8 marks. No, this is not that. And
there's no strictness in the class. If you want to go somewhere, you can go without taking permission. You can use your mobile. You can do anything in your class. The main thing, but when the teacher is asking you something or telling you something, you should take care of that. And I think that should be. And if you are not taking, they will not say anything to you. There is no period system. Only one teacher enters the class and whole day she teaches us. तो वहाँ का फूड का क्या है, मतलब वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज के लिए जो फूड आइटम्स अवेलेबल है, एंड आर इंडियन स्पाइसेस अवेलेबल ओवर देयर? No, Indian spices are not available here. But yes, you can get Indian food here. There are many restaurants in Moscow where you can get easily everything. And but yeah, that is expensive, but not that much. You can afford if you are eligible, if you have the funds, you can. But yes, if you cook by yourself, it will be cheap for you, and you can get the raw material every raw material you can get. But yes, spices you have to take from India, because here people do not like spices, and mostly foreigners didn't like, only we Indians and some countries like, but not all. Here they eat so simple, not fried, uh, not spicy, simple food. Like we say na, that मरीजों का खाना सिर्फ नमक नमक का, ये they eat so simple and तो they वहाँ पे eat. आप अपना फूड वगैरह खुद बनाते हो फिर? हाँ, मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ. बट व्हाट इफ समवन डजंट नो कुकिंग, देन उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड स्पेशली फॉर वेज, बिकॉज आई हैव हर्ड कि वहाँ पे जो मोस्टली जो कल्चर है या फिर मोस्टली जो लोग खाना खाते हैं वो नॉन वेज है, मीट हो गया या फिर अदर थिंग्स। हाँ, वेज ऑप्शन यहाँ कितने पे मीट अवेलेबल? बहुत चीप मिलता है. वेज ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको. अब मेरे जो साइड में स्टोर है, वहाँ पर आपको रेडीमेड पास्ता. ओब्वियसली अगर आप रोटी वगैरह खाना चाहेंगे तो एक्सपेंसिव होंगे, और जो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा एक फॉरेन स्टूडेंट यहाँ आने के बाद. क्योंकि अगर हम पर टाइम अगर हम खाना खा रहे हैं तो वो लगभग थाउजेंड तो आपका हो जाएगा. तो 3000 आई थिंक कोई नहीं अफोर्ड करेगा, और अगर कर रहा है तो दे विश. बाकी आपको मिल जाएगा खाना अगर आप नहीं बनाना जानते हैं. बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत ये है कि आपको ब्रेड्स वगैरह खा सकते हैं तो आपको वो भी इजीली मिल जाता है. ऐसा नहीं है, पोटैटो ब्रेड्स यहाँ मिलते हैं, कारतोश जिसको हम बोलते हैं. तो 100 रूबल्स और 60-70 रूबल्स मिल जाते हैं आपको. यहाँ पे ऐसा नहीं कि फिक्स्ड प्राइस है हर चीज़ का, कि अगर आप कहीं भी जाओ ये आपको इतने रूबल की मिलेगी. डिपेंड टू स्टोर टू स्टोर वेरी करता है इनका प्राइस. ओके, तो व्हाट ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक अगर कोई वेज के लिए तो वेज में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं? If you go to store, that depends which type of store and in which area you are living. Like I am in Moscow, and in Vedenka I am living. This is one of the famous place in Moscow itself. I am getting all things easily. One store is 50 meters away from my dormitory, hardly, and one is only 20 meter away. I can just reach in 1 minute there. I can get everything: pasta, fries, and salad, milk, butter, paneer. I can get a potato, some pizza type, that is, we can say, pancakes. I can get that. Yeah. तो वो लोग मतलब ले सकते हैं ऑल दिस? हाँ, इजीली अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि आपको मिलता नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल है चीज़ें. लेकिन जगह आपको डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं. क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था. एक्सपेंसिव, आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, बट लाइक इफ यू नो, लाइक यू शुड नो कुकिंग आई गेस, बिकॉज जो Yeah, रेस्टोरेंट्स में yeah, जाके you आपको should. एक्सपेंसिव काफी चला जाएगा. Yeah, you should know cooking. You should do your work by yourself. It is so good. And if yeah, it is so common that if demand is less and things are expensive, so things will high rate. In India also, that yeah, if there is meat, people are like
people like that, and they eat in large amount, so that will be cheap. And things which are in less demand, things are high there. In India also it is the same. If I talk about Haryana, I get meat so expensive there, but for my staple food, if I'll go, that will be so cheap. So their staple food is meat, and they are getting it affordable prices. तो आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन? मैं वेजिटेरियन हूँ। तो आप अपना सारा कुकिंग वगैरह खुद करते हो? हाँ, मैं कुकिंग वगैरह खुद करती हूँ। तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कभी बाहर से होता है कि आज बहुत ज्यादा थक गए हैं एंड बाहर से जाके खाने का मन हो रहा है, देन हाँ, तो आप बर्गर वगैरह खा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको बर्गर। सूजनी कटलेट बर्गर बोलते हैं, वो वेजिटेरियन के लिए है, और वो आप खा बट आपको सकते चपाती वगैरह नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ पे हो। रेस्टोरेंट्स में जाओ तो आपको चपाती दाल ये सब हो गया। हाँ, हर रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट से आप वहाँ जा सकते हैं। ओके। हाँ, आराम से जा सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई आफ्टर बीइंग इन रशिया? My life doesn't change so much after coming in Russia, because in India also I had a busy schedule, and I used to live my life in the same way with no restrictions, and I used to do things which I want to do, and now here also I am doing the same. But the difference is now, mm, I am with new people, and there are no expectations here from people that they will help me or not. They should guide me for this, and yeah, where expectations are, we get hurted there, and now I'm not getting hurted here because there are no expectations. I'm fully prepared that no, the things are here the same. There are Here the same. तो डू यू एवर There फील are लोनली no. देयर, बिकॉज वहाँ पे एक अपना जैसे कहते हैं अपनी सोसाइटी नहीं, अपने लोग नहीं है, तो इज लोनलीनेस देयर? I don't feel, because here people have so busy schedule, they have no time for the loneliness feeling. uh, Students who are working here, if they are getting time to talk someone in their family, that is enough. We If I talk about me, I hardly get 1.5 hour. If I am doing something, means I am missing one thing, then I am doing the other thing. तो वहाँ पे ऐसा भी होता है जैसे कि अब जब जैसे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं, इंडियन फेस्टिवल्स, दिवाली हो गया या फिर होली, तो ये फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट करे जाते हैं रशिया में? नहीं, यहाँ पे फेस्टिवल्स होली दिवाली सेलिब्रेट नहीं होते हैं। यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर इनका मेन फेस्टिवल होता है। इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, अभी से इनकी तैयारी बहुत दिनों से स्टार्ट हो रखी है। स्ट्रीट्स पे जाती हो तो लाइट्स ही लाइट्स हैं, और बहुत सुंदर डेकोरेट कर रखे हैं इन्होंने चीज़ों को। ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत है कुछ, फीलिंग आती है भाई कि रियली में लोग आना क्यों चाहते हैं यहाँ। रियलिटी है कि लोग फॉरेनर्स फॉरेन कंट्रीज में जाना क्यों चाहते हैं। ये इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट रखते हैं अपनी चीजों को कि मतलब अपने वहां तो गंदगी दिखती है हर जगह। बीटर ट्रूथ है इंडिया की कि बहुत गंदगी है, सभी को पता है, लेकिन उस चीज को सुधार कोई नहीं पा रहा है। यहाँ पर नहीं नजर आता कूड़ेदान, मुझे कहीं भी कूड़े के कचरे ढेर नहीं नजर आते। मुझे चलती हूँ मैं, कहीं रैपर्स नहीं आता पैरों के नीचे। बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट है। राइट, वो एक काफी अच्छी चीज रहती है, फॉरेन कंट्री की काफी क्लीन है वो चीज है। अच्छा, जैसे कि मेरा भी कैसे किसी और के साथ भी एक बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे कुछ इंडियन कम्युनिटीज बनी होती हैं, तो वो अपने आप में जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा रशिया में नहीं है कि कुछ इंडियन कम्युनिटीज हों तो वो अपना एक जो होते हैं सेलिब्रेट करती हैं? देयर माइट बी, यहाँ भी होंगे, मैं भी जुड़ी नहीं हूँ लोगों से। हाँ, कुछ इंडियन बच्चों के ग्रुप्स हैं जिसमें बच्चे जॉब वगैरह के बारे में बात करते हैं, असाइनमेंट वगैरह के लिए बात करते हैं। असाइनमेंट अगर किसी को बनवाना है, कोई हेल्प चाहिए, तो ऐसा तो है, ग्रुप्स तो बने हुए हैं। आईएनआर किसी को चाहिए, किसी को रूबल चाहिए, किसी को मेट्रो कार्ड चाहिए है, तो हेल्प करने के लिए तो है। बाकी अभी मेरे पास अभी फेस्टिवल, मेरे सामने कोई फेस्टिवल आया नहीं है, तो मुझे उस चीज़ का भी पता भी नहीं है कि ग्रुप है या नहीं है ऐसा कोई। बाकी ऐसा तो है, अगर अपने 5-10 बच्चे मिलेंगे तो सेलिब्रेट देखो अपने वाले तो करेंगे। राइट।
एंड मेरे पास तो ऑल्सो भी ऐसा क्या। सर्कल है, तो मुझे चीज हम्म। एंड ऑल्सो वहाँ पे घूमने की प्लेसेस क्या है, लाइक इफ समवन कम्स टू रशिया एंड दे वांट टू विजिट, तो ऐसे कुछ बकेट प्लेसेस लेके थे ना कि कुछ प्लेसेस होते हैं जो बकेट लिस्ट में होते हैं, यू मस्ट ट्रेवल प्लेसेस। Yeah, first of all, there is Red Square. Yeah, there is there ये रेड स्क्वायर प्लेस है मॉस्को के अंदर। हाँ जी, तो वहाँ पे रेड स्क्वायर इनका मेन रश 1 किलोमीटर वहाँ से स्टार्ट होता है। वहाँ पर एक 9 चर्चेस का डोम टाइप है, जहाँ पर आप देखोगे ना, आप रशिया के बारे में अगर सर्च करोगे तो सबसे पहले वही डोम आता है जहाँ पे 9 चर्चेज हैं। वहाँ पे लेनिन जो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी रहे हैं, लेनिन रशियन रिवॉल्यूशन के, उनकी डेड बॉडी वहीं पर है, लोग उसको विजिट करने जाते हैं। क्रेमलिन है वहाँ, और वहाँ पर एक वॉच टाइप है, वॉल क्लॉक, जिसमें हर घंटे पे इनका उसकी साउंड सुनने के लिए लोग स्पेशली खड़े होते हैं, और उनका इनका जो नेशनल एंथम है वो सिंग्स होता है उसके अंदर। स्पेशली न्यू ईयर पर लोग जाते हैं वहाँ उस आवाज को सुनने के लिए। म्यूजियम्स है यहाँ पर, एक म्यूजियम मेरे वेदंका में ही है, मैंने भी विजिट नहीं किया है। क्रेमलिन म्यूजियम्स हैं, एक इनका अंडर सी वर्ल्ड टाइप कुछ म्यूजियम है, वो भी बहुत अच्छा है देखने का। मैं भी अभी एक्सप्लोर करती, मैंने सर्च किया था क्या क्या चीज़ें विजिट करने की हैं, तो भी मैंने क्रेमलिन देखा है और रेड स्क्वायर में गई हूँ, बहुत अच्छा प्लेस है। मैं जब मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली क्रेमलिन के लिए तो मुझे लगा कि मतलब मैं जैसे जोधपुर में आ गई हूँ, ऐसा जैसे महल किले टाइप की फीलिंग उसमें आई, लेकिन बहुत सुंदर है प्लेस, देखने के लायक है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप आते हैं तो आप उन जगह जरूर जाओ। रेड स्क्वायर सबसे मेन प्लेस है यहाँ का। राइट। तो आप मतलब आप मोस्टली वीकेंड्स में ट्रेवल करते होगे क्योंकि बाकी दिन जैसे क्लासेस वगैरह हो जाती होंगी, राइट? आपका डेली हाँ शेड्यूल जी। कैसा रहता है वहाँ पे? यहाँ पे क्लासेस चलती है मेरी बैक टू बैक। बच्चों का हर किसी का डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका डे शेड्यूल रहता है। मेरा शेड्यूल रहता है, मैं सुबह 7:30 बजे उठ के अपना खाना वगैरह खा के मैं 8 बजे कॉलेज के लिए निकल लेती हूँ। मैं लगभग 9 बजे वहाँ पहुँच जाती हूँ। फिर 9 से 2 बजे तक मेरी क्लासेस रहती हैं। फिर मैं अपना थोड़ा काम करती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का जो काम होता है वहीं पर कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे फिर अपना मेरी क्लासेस होती है पर्सनल, मैं अपने वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ। मैं लगभग 12 बजे फ्री होती हूँ रात को। फिर सुबह डेली यही रूटीन रहता है। ओके। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मतलब कि वहाँ का वेदर एंड ऑल्सो वहाँ के लोग कैसे, जैसे आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आर दे ऑल्सो वेरी वेलकमिंग टू इंडियंस पीपल, टू इंडियन पीपल? Yes, they are so welcoming to the Indian people. They used to help us, and for sure, if you're not getting Russian, they will try their best to help you, make you understand in their by English some words which they are aware of, or they'll use translator for you to help you. And if I talk about weather, they're so cold. It is now -6 degrees Celsius temperature right now, and at night it goes to -11 sometimes. And I asked from people that how much more cold will be, so it will be around -20, -25. ओके। तो मतलब ओवरऑल ऐसा रहता है या फिर सिर्फ इन विंटर सीजन्स में ही इतना आ जाता है, या फिर ओवरऑल ठंडा ही रहता है? नहीं, विंट ठंड तो नॉर्मली रहती है अपने इंडिया से ज़्यादा। गर्मी तो ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन विंटर्स में स्नोफॉल ज़्यादा होता है इनका। ओके, तो अभी वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है? दिसंबर, हाँ जी अभी भी हो रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आपका दिसंबर कैसे जनवरी आपको फरवरी डिफरेंस लगा स्नोफॉल यहाँ होता पे, है। क्योंकि इंडियन में तो यहाँ पे काफी कम होता है स्नोफॉल, तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि कैसे आप मैनेज कर रहे हो? Yes, if I talk about cold, when we go outside on streets, then only we feel cold. That yeah, cold is there. Inside, we are not feeling that cold is so much. We are half sleeves here. तो अंदर ठंड नहीं लगती? जैसे कि होता है कि ठंड होती है तो पूरा जैकेट्स एंड ऑल, एंड अभी भी आई गेस आपने Mm, हाफ स्लीव भी पहना हुआ है।
हाँ, मैंने भी हाफ स्लीव्स ही डाला हुआ है, और रात को तो हम कई बार फैन यूज करते हैं। हाँ, जैसे अपने इंडिया में हाँ, जैसे इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एसी होते हैं अपने बिल्डिंग्स में, ऐसे यहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर सेंट्रलाइज्ड हीटर्स हैं इनके, तो अंदर फील नहीं होता है ठंड है। एंड उससे से आप बता रहे थे कि आप रशियन सीख रहे हो, तो आप इंडियन ऑडियंस को कुछ बोल के दिखाओगे रशियन में? या привет, как дела? Я хорошо, ты means привет, hello, как дела, how are you? या хорошо, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? Okay, then could you introduce yourself in Russian language? Я, меня зовут Тану, моя страна Индия, мой город Харьяна, Баджанакала, Харьяна. А, я люблю мой мама, папа, and моя сестра, мой брат. वाह, तो अभी आप पूरा मतलब रशियन लैंग्वेज अच्छे से आप कर रहे हो, राइट? एंड हाउ मच टाइम इट हो गया है कि आपको रशियन सीखते हुए? It's about around 2 weeks. 2 weeks, really? Yeah. ओह नाइस। अच्छा, देन आपका ये पूरा 1 year का कोर्स चलेगा? Yes. 1 year का ओके, course चलेगा मेरा। then after 1 year again we will connect and have a podcast. Yeah, sure, why not? ओके, तो आप कोई एडवाइस देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो भी हमें देख रहे हैं, लाइक इफ दे आर प्लानिंग टू कम टू रशिया, उनको क्या पॉइंट्स अपने लाइक मस्ट रिमेम्बर पॉइंट्स क्या होने चाहिए उनके लिए? Yeah. First, carry your documents. Ensure you should have all documents. Your adapter, which are different here. Yeah. Adapter, uh, your power bank. You should have different types of cable with you, so you can charge your mobiles, PCs, and all. And you should, if you are spicy lover, you should have your spices with you. You should have warm clothes with you. Your bag, your umbrella, waterproof shoes, which you can use in snow outside also. Yeah, there are some basic things which you should have. You should have one formal dress, black and white, if you are working somewhere officially. Yeah, black trouser you should always have. सो एक फियर भी रहता है एक अलग दूसरी कंट्री में जाने का, तो एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द पीपल दैट आर कमिंग? Um, be strong, be strong. There is nothing tough. When you have strong dreams, the ways are so easy for you. Things might be tough at first, but timely it will be so easy for you. And if you once clear them all, you will succeed. Then you will think, yes, I have done it, and it was not that much tough, which I thought. राइट, तो ड्रीम्स का होता है कि वो स्ट्रांग होंगे तो आप कर लेते हो, लाइक यू कैन, कहते हैं ना कि इफ योर ड्रीम्स आर स्ट्रांग इनफ यू विल गेट द वे। या जहाँ चाह वहाँ राह है। Okay, so thank you so much Tanu for your time and it was really a wonderful podcast and काफी कुछ सीखने को मिला। जो भी स्टूडेंट्स एंड जो भी लोग हमको देख रहे हैं, होप उनको काफी कुछ क्लियर हुआ हो, एंड जो भी डाउट्स हैं दे कैन कमेंट डाउन एंड वी कैन अगेन रिकनेक्ट clear Yeah, with sure, why not? clearing their doubts. So thank you once again for this wonderful podcast. Thank you so much. Have a nice time with you. If you like this podcast, if you find out any value out of it, do like, share, and subscribe. And if you want to share your story, your experience, do connect with me. I hope you like this podcast. Let's meet in the next episode. Thank you everyone, and please do give me your feedback. How can I improve? And आपको और किस टाइप्स के पॉडकास्ट चाहिए, और आपको कौन सी confusions हैं, that we can help you in clarifying all those doubts. So thank you so much. Thank you for watching till now. Bye bye.